ਯੈਸ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, तो ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਔਰ। तो ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੈਪ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। तो ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ कंसंट्रेट कर लिया। ओके, देन वर्किंग यूजिंग फ्लोटेशन सेल। तो जो वर्किंग सी इसकी इसनों ਆਪਾਂ डिस्कस कर चुके हैं वैसे कल। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ कि टैंकर ਦੇ अंदर पाइन ऑयल वाटर एंड सल्फर का जो ओर ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਝੱਗ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ, ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਇਲ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਲਫਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਝੱਗ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, तो इस प्रोसेस ਦੇ ਲਈ सस्पेंशन of powder ore is mixed with water to this collector। पाइन ऑयल फैटी एसिड मतलब ਅਸੀਂ ਜੋ ऑयल यूज करना है, कोई भी पाइन ऑयल ਜਾਂ फैटी एसिड कोई भी कर सकते हैं। then ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਸਤਾ ਅਜਿਹਾ ਤੇਲ ਫੈਟ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ऑयल ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਲਫਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। The mineral particle become wet by oil while the gang particle by water। ਜੋ ਗੈਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। तो a rotating paddle agitate the mixture and draws air in it। As a result, froth is formed which carries the mineral particle। तो ਐਜੀਟੇਟ ਅਸੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਸਰਫ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਅਪ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਐਜੀਟੇਟ ਕਰੇਗਾ। और जो फ्रोथ इज लाइट, ਝੱਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, skimmed off ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਪਰ ਤੈਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो इस फ्रोथ फ्लोटेशन ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਕਚੁਅਲ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਿੰਗ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਾਂਗੇ what if two sulfide ores are present। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਫਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਔਰ ਮਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਦੋ ਔਰ ਮਿਕਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਔਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ डिप्रेसेंट यूज करके उसਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ करना पेगा, और दूसरी और जो बच जाएगी उसदे असी जो ये मैथड लगा के फ्रोथ फ्लोटेशन जड़ा तो असी सल्फर की ओर गेन कर लांगे। जिमें कि प्रिंसीपल है कि साडे कोल अगर दो ओर्स है, ओर नंबर 1 एंड ओर नंबर 2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਪਾਣਾ ਹੈ तो ਇਹ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਕੈਮੀਕਲ ਰੀਏਜੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਔਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਥ ਫਲੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ हैवी करके नीचे बिठा देना है, ठीक है ना। तो असी जिमें कि हुण चाहते हैं कि ओर नंबर 2 सानू मिले और जो डिप्रेसेंट है वो ओर नंबर 1 ਨੂੰ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ओर नंबर 1 ਦੇ ਨਾਲ डिप्रेसेंट मिलेगा और ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ हैवी कर देगा, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ सल्फर की ओर ਜਿਹੜੀ है अलग नहीं होएगी और दूसरी ओर जो है ओर नंबर 2 वो ओर नंबर 1 ਤੋਂ अलग हो जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके नाल दो और दा जो मिक्सचर सीगा उन्हां विचों असी एक कंप्लीटली जिहड़ी और है उसनूं
अच्छे तरीके नाल अलग कर लिया एक एक्स्ट्रा केमिकल यूज करके, डिप्रेसेंट। तो डिप्रेसेंट का जो वर्किंग है उसनों एक बार देख लेने आ। इन केस ऑफ एन ओर कंटेनिंग जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड, तो दो तरह की ओर एक जगह तो सानू मिल गई जिहदे विच जिंक सल्फाइड एंड लेड सल्फाइड। चलो चाहिदा तो सानू सल्फाइड ही सीगा, लेकिन अभी असी सल्फाइड जिंक तो लेना है कि लेड तो लेना है, वो जिहड़ा है इसनों असी डिसाइड करना है, इसलिए असी एक डिप्रेसेंट यूज करते हैं। और डिप्रेसेंट इत्थे कैमिकल जिहड़ा है वो है सोडियम साइनाइड NaCN। It selectively prevent zinc sulfide from coming to froth but allow lead sulfide to come with froth। ओके, तो यही जो सोडियम साइनाइड है जो कि एज ए डिप्रेसेंट कम करता है, वो जिंक सल्फाइड ਨੂੰ रोकता है झग बनने तो, और लेड सल्फाइड ਦੀ ਝੱਗ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਫਰ की ओर दे ਦਿੰਦਾ है। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਡ ਸल्फाइड एंड जिंक सल्फाइड, ਇਹਦੇ ਨਾਲ डिप्रेसेंट ਅਸੀਂ ऐड किया सोडियम साइनाइड, और जो कंपलैक्स सानू एक मिल गया जिंक सल्फाइड दे नाल, जो सोडियम साइनाइड ने एक कंपलैक्स बना दिता जो कि हैवी हो गया। इस तरह कह लो कि साडे सिस्टम दे विच जो असी टैंकर च सिस्टम सारा मिक्स किया है वो नीचे बैठ जाएगा, और जो दूसरी ओर है लेड सल्फाइड वो एजिटेट होके पाइन ऑयल दे नाल जो सल्फर की ओर सानू दे देगी। एक क्वेश्चन ले लेने बेटा, द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ गैंग, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ और पार्टिकल, preferential wetting of ore particle by oil, और preferential wetting of gang particle by oil। तो gang particle तो oil से wet नहीं हो रहे, gang particle तो water से wet हो रही है, लेकिन जो particle है वो oil से फ्रोथ फ्लोटेशन के जो रिक्वायर्ड पार्टिकल है वही वेट हो पा रहे हैं। तो हमारा आंसर रहेगा द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन preferential wetting of ore particle by oil। एक और क्वेश्चन लेने हैं जी, विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फॉर्मिंग एजेंट इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फॉर्म बनाने के लिए ਅਸੀਂ कौन सा एजेंट यूज कर रहे हैं, और हेयर इट इज पाइन ऑयल। सस्ता है, आसानी नाल मिल जाता है, और इसनों रिमूव करना भी बाद च आसान होता है, इस करके ਅਸੀਂ पाइन ऑयल का यूज करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर। Which one of following ore is not concentrated by froth flotation process? कौन सी और को असी froth flotation दे नाल नहीं रिमूव कर सकते। तो इत्थे जो ओर है असी जानते हैं कि froth flotation सल्फर वाली ओर ते ही लगेगी, बाकी किसी ते नहीं लगेगी। तो जिंक सल्फाइड जिहड़ा है ZNS सल्फर वाली ओर है, तो इससे जिंक सल्फाइड ठीक है ना, सल्फर वाली ओर है, तो ऊपर वाली भी दोनों जो सल्फाइड वालियां ओर है, ओनली आयरन ऑक्साइड जिहड़ा है ये इस दे ऊपर असी नहीं लगावांगे फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट, तो लीचिंग का मेथड लास्ट मेथड है कंसंट्रेशन पहला स्टेप दा। तो लीचिंग क्या है जी, लीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम ए सॉलिड by dissolving them in a liquid। It is used if the ore alone but not the gang is soluble in some suitable solvent। तो प्रिंसिपल है लीचिंग का कि अगर गैंग पार्टिकल किसी खास एजेंट के साथ या किसी खास कैमिकल ਦੇ ਨਾਲ रिएक्शन करके डिजोल्व ना ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ कि ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਰਲ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕੈਮੀਕਲ 'ਚ डिजोल्व ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ जो ओर है उस दे अंदर वो कैमिकल मिला देना है, जिस दे विच जो साडा रिक्वायर्ड कैमिकल है मैटल है वो डिजोल्व हो जाएगा, और गैंग पार्टिकल डिजोल्व नहीं हो पाएगा, तो असी उस लिक्विड दे ऊपर नैक्सट प्रोसेस लगा के मैटल नू एक्सट्रैक्ट कर लांगे, और इस प्रोसेस नू असी बोल रहे हैं लीचिंग। द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलुस्ट्रेट द प्रोसीजर। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट,
तो बॉक्साइट एक एल्यूमिनियम का ओर है और बॉक्साइट यूजली कंटेन SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटीज। तो बॉक्साइट के अंदर तीन तरह की इम्प्योरिटी डिस्कस कर रही हैं, दैट इज सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। तो तीनों ऑक्साइड है मेटल के, सिलिकॉन नॉन मेटल है, सिलिकॉन, आयरन एंड टाइटेनियम के ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी इन बॉक्साइट। Concentration is carried out by digesting the powder ore with a concentrated solution of sodium hydroxide at 473 to 5 to 3 Kelvin and 35 to 36 bar pressure। तो कैसे करना है, जैसे कि एल्युमिनियम की ओर है Al2O3 बॉक्साइड और इसके अंदर मिला रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड एज ए केमिकल, जो कि मेटल जो रिक्वायर्ड मेटल है उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और एक अपना कंपाउंड बनाएगा डिसॉल्व फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो यहां पर जो सोडियम अल्मीनेट है ये एक्वस फॉर्म में, जो अल्मीनियम है डिसॉल्व हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इसका जो टेम्परेचर है 473 टू 523 केल्विन रहेगा और सिस्टम का जो प्रेशर है 35 टू 6 बार रहेगा। दिस वे अल्मीनियम ट्राइऑक्साइड is leached out as sodium aluminate and silicon dioxide to as sodium silicate, leaving the impurity। तो कहने का मतलब है जो अल्मीनियम है वो तो केमिकल के साथ डिसॉल्व होके एक्वस फॉर्म में आ गया, बाकी की जो इम्प्योरिटीज थी अल्मीनियम की ओर के अंदर, मतलब बॉक्साइड के अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो लीविंग बिहाइंड रह जाएगी। Sodium aluminate is neutralized by passing carbon dioxide gas and hydrated Al2O3 is precipitated। अभी जो एक्वस फॉर्म में अल्मीनियम आ गया डिसॉल्व फॉर्म में, ठीक है ना, पानी के अंदर केमिकल के अंदर डिसॉल्व हो गया, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास आउट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, जो सोडियम अल्मीनेट है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड हाइड्रेटेड जो Al2O3 है ना उसके प्रेसिपिटेट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर। तो रिएक्शन में जो सोडियम एल्यूमिनेट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद वो Al2O3 और उसके साथ कुछ पानी के जो मॉलिक्यूल्स बाइंड रहेंगे और जो एक्स्ट्रा केमिकल जो हमें डिजायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, वो एज ए बाइकार्बोनेट अलग हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के दौरान। द सोडियम सिलिकेट रिमेन इन सोल्यूशन। जो सोडियम सिलिकेट बन गया बाई प्रोडक्ट रिमेन इन सोल्यूशन एंड हाइड्रेटेड एल्मीना इज फिल्टर्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू गिव बैक प्योर Al2O3। तो जो अल्मीनियम ऑक्साइड है तो इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, इसको फिल्टर करेंगे, सुखा लेंगे और हमें Al2O3 प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। अभी क्या है कि अल्मीनियम के साथ जितनी भी इम्प्योरिटी थी वो रिमूव होगी, अभी अल्मीनियम के साथ ओनली ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है और जस्ट ऑक्सीजन को हम अगर किसी मेथड से उतार दें तो अल्मीनियम हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। तो इसके साथ क्या करेंगे, हम हीट अप करना है जस्ट। तो हीट अप करने के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है, मॉइस्चर है, वो भी उड़ जाएगा, Al2O3 हमें मिल जाएगा। अदर एग्जांपल, सिल्वर एंड गोल्ड is leached with a dilute solution of sodium cyanide और पोटाशियम साइनाइड। तो लीचिंग ओनली अल्मीनियम का नहीं किया जाता, तो वो सिल्वर एंड गोल्ड का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो हम लीचिंग एजेंट यूज करेंगे वो रहेगा सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड। The presence in the presence of air from which the metal is obtained later by the replacement by zinc। ओके, तो ऐसे केमिकली रिएक्शन से देखते हैं।
मेटल कौन सा हो सकता है? ये जो मेटल लिखा है, मेटल सिल्वर या गोल्ड कोई होएगा जो कि सोडियम साइनाइड या पोटाशियम साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद अपना एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और ये मेटल कौन सा रहेगा? सिल्वर या गोल्ड। और इस मेटल कॉम्प्लेक्स, साइनाइड कॉम्प्लेक्स को बाद में जिंक से अगर हम ट्रीट करेंगे तो जिंक मेटल क्या करेगा कि मेटल के साथ जो साइनाइड एटम मॉलिक्यूल जुड़े हैं उसको अपने साथ ले लेगा और जो मेटल है उसको फ्री कर देगा। तो ऐसे हमने बहुत ही आसानी से लीचिंग मेथड लगा करके सिल्वर और गोल्ड को मेटल फॉर्म में ले लिया, प्योर मेटल फॉर्म में। जो इम्प्यूरिटीज थी उनको अलग कर दिया, जो पानी के अंदर ही रह जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन बॉक्साइट्स आर सिलिकॉन डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड। तो ऑल द अबव, सारे के सारे हमने पढ़े हैं बॉक्साइट की इम्प्योरिटीज। Which of following aqueous solution is used in leaching of alumina? Sodium hydroxide, calcium hydroxide, cesium hydroxide या बोरॉन हाइड्रोक्साइड? तो आंसर इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अल्मीना के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सिल्वर और गोल्ड के लिए तो सोडियम साइनाइड यूज किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो पहले हमने करा था सिलेक्शन ऑफ ओर। सिलेक्शन ऑफ ओर के बाद हमने करा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर जस्ट गैंग पार्टिकल को रिमूव करा। 4 मेथड पढ़े हमने। और उसके दौरान जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिल गई उसके ऊपर हमने लगाना है नेक्स्ट मेथड, दैट इज एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर हमने करनी है किसी ना किसी बड़ी भट्ठी के अंदर। तो बड़ी बड़ी भट्टियां लगी हुई हैं, इसके अंदर जो है जो कंसंट्रेटेड ओर है उसको रख देंगे और बहुत ज्यादा हीट से उसको हीट करेंगे, रोस्ट करेंगे। तो उसके साथ जो वोलेटाइल इम्प्योरिटी होगी वो वेपोराइज होके उड़ सकती है। जैसे कि हमने 10th क्लास में अभी ये पढ़ा है ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हम करते हैं स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन को गेन करने के लिए, आयरन क्या है? आयरन की और हेमेटाइट मतलब Fe2O3। तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए फेरस से तो हम इसका यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस का। ब्लास्ट फर्नेस का जो वर्किंग है वो इस तरह है कि इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमने भर देना है और किसका? फेरस ऑक्साइड का। और उसके साथ हम दे रहे हैं लाइमस्टोन एंड कोक। तो कोक मतलब कार्बन का चूरा और लाइमस्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को भर देना है मिला करके ओर के साथ। तो जब इसके साथ कंप्लीट ये इक्वल रेशियो में जब ब्लास्ट फर्नेस में हमने इसको भर दिया तो क्या करेंगे? तो नीचे से बहुत ज्यादा टेम्परेचर से हम भट्टियां से इसके अंदर जो है ना गर्मी इंसर्ट करेंगे। तो क्या होगा? जैसे कि 2170 केल्विन, तो 2170 केल्विन के ऊपर जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिलके, कार्बन कहां से आया? क्योंकि कोक भी इसके अंदर डाला है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है थोड़ा ऊपर उठ के जाएगा तो वो और किसी दूसरे कार्बन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो सबसे पहले क्या हुआ? कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और उसके ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है किसी और कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो हमें चाहिए था ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा नेक्स्ट वर्क करेगा, काम करेगा। तो ये इसने क्या करना है? जो फेरस के साथ ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी लगी हुई है तो उसके साथ जब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एक क्वालिटी है कि वो ऑक्सीजन को अपने साथ रख के कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और जो आयरन है उसको लिक्विड फॉर्म में अलग कर देगा, ठीक है ना, मोल्टन फॉर्म में। तो उसके साथ हमने तो और भी एक प्रोडक्ट लाइमस्टोन भी डाला था, ठीक है ना। लाइमस्टोन क्या था?
कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का डालने का मकसद सिर्फ यही है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक तो गर्मी के साथ पहले टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, दो प्रोडक्ट के अंदर टूट गया कैल्शियम कार्बोनेट। अभी क्या करेगा, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड ने इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जितनी भी गंदगी इसकी सतह के ऊपर रेत या मिट्टी वगैरह लगी हुई है, उसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड मिल करके रिएक्शन करके एक स्लैग बनाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालने का जो मकसद है वो यही है कि इस ब्लास्ट फर्नेस की सतह के ऊपर अंदर इंटरनल लाइनिंग के ऊपर जो रेत है गर्म होके जम ना जाए, ठीक है ना। तो एक दिन ये ब्लास्ट फर्नेस कंप्लीटली अंदर से ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो जो ऐसी इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए जो कैल्शियम ऑक्साइड ने सिलिकॉन डाइऑक्साइड से मिलकर स्लैग बना दिया, और स्लैग एक लिक्विड फॉर्म में, वो भी मोल्टन फॉर्म में नीचे चला जाएगा। ओके, तो हर एक स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो लास्ट में ऊपर से जाके वेस्ट गैसेस से बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अभी जो आयरन निकल गया मोल्टन फॉर्म में, वो हैवी है, वो नीचे आके बैठ जाएगा, और उसके ऊपर जो स्लैग है हमारा कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3, वो अपनी परत उस मोल्टन आयरन के ऊपर बना लेगा, ठीक है ना। तो इसके साथ इससे हमें एक फायदा भी हो जाएगा कि जो मोल्टन फॉर्म में आयरन है वो जो इतनी ज्यादा हीट गर्मी से वो दोबारा से रिएक्शन करके आयरन का ऑक्साइड नहीं बनाएगा, ठीक है ना। उसको क्यों प्रोटेक्ट किया गया, क्योंकि ये स्लैग ने आके कोटिंग कर दी उस मोल्टन आयरन की। तो मोल्टन आयरन को समय समय पर हम ये टैप लगा के उसको भी बाहर निकाल रहे हैं, और जो गंदगी जो स्लैग है उसको भी बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसके अंदर हम जो ये तीन प्रोडक्ट है हमारी ओर, लाइमस्टोन और कोक, इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर डालते रहेंगे, और हमें जो मोल्टन फॉर्म में प्योर जो आयरन भी मिलता रहेगा, और इसकी गंदगी है वो भी बाहर निकलती रहेगी एज ए फॉर्म ऑफ स्लैग। तो सबसे पहले हमने देखा था कि सिलेक्शन ऑफ ओर करा, सिलेक्शन ऑफ ओर एक बार हो गया, फिर हमने कंसंट्रेशन का स्टेप पढ़ा, और कंसंट्रेशन में हमने जस्ट रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल करे। रिमूवल ऑफ गैंग पार्टिकल करने के बाद हमारे पास मिल गया कंसंट्रेटेड ओर। तो कंसंट्रेटेड ओर के ऊपर हमने फिर कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड लगाने हैं, अभी जो मैंने ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर सिर्फ आयरन के लिए आपको बताया। तो एक्सट्रैक्शन का जो मेथड हम लगाएंगे, तो उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद उसकी रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग के बाद हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। रिफाइनिंग का मतलब है कि जो हमें मेटल गेन हो गया वो 100% प्योर नहीं है, तो उसको 100% प्योर करने के लिए कुछ और स्टेप लगा सकते हैं उसके ऊपर, ताकि हमें 100% प्योर जो है ना वो मेटल मिल जाए। तो ओर का सिलेक्शन हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, एक्सट्रैक्शन को अभी डिटेल में करना है, और रिफाइनिंग भी देखना है। एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, तो कंसंट्रेटेड ओर हमें मिल गई, उसके बाद हमने करना है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर इन्वॉल्व्स टू मेजर स्टेप्स, conversion of ore into oxide if ore is not an oxide, or reduction of oxide to metal। तो एक बार डिटेल में समझ लेते हैं यहीं पर सब कुछ। तो क्या बात है कि कंसंट्रेटेड और हमें मिल गई, कंसंट्रेशन कर ली हमने, गैंग पार्टिकल रिमूव कर दिए, कंसंट्रेटेड और हमें मिल गई। तो कंसंट्रेटेड और के ऊपर हमने कुछ एक्सट्रैक्शन मेथड लगाने हैं, ठीक है ना। तो जिस मेटल को हमने गेन करना है उसके ऊपर उसका मेथड लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसके साथ हमें मिल जाएगा कुछ एक और से हमें मेटल मिल जाएगा। तो कहते हैं कि उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन है ये इस ऐसे स्टेप होंगे कि सबसे पहले तो एक्सट्रैक्शन करनी है, तो जो मेटल हमने गेन करना है उसको ऑक्साइड फॉर्म में बोल रहे चेंज कर लो। मीन टू से कि अगर मेटल के साथ पहले से ऑक्सीजन बाइंड नहीं है तो किसी तरह से उसकी रिएक्शन ऐसे करो कि उसके साथ ऑक्सीजन लग जाए,
ठीक है ना। तो जहां तो हमें कोई ऑक्सीजन वाली मेटल वैसे मिल जाएगी, अगर नहीं है तो उसके साथ ऑक्सीजन लगा लो। बाद में उस ऑक्सीजन को हमने उतार देना है, रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन करने के बाद हमें एक प्योर मेटल मिल जाएगी। तो ऑक्सीजन कोई ऐसे नहीं लग जाएगी, जो मेटल है उसको साथ अगर ऑक्सीजन लगानी है ना तो उसको हमें हीट करना पड़ेगा ऑक्सीजन के अंदर, ठीक है ना, आग लगानी पड़ेगी उसको। तो कन्वर्जन ऑफ ओर टू ऑक्साइड के अंदर करने के लिए जब हम उसके ऊपर बहुत सारा टेम्परेचर से हीट अप करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि उसके अंदर की जो बहुत सारी इम्प्योरिटीज वोलेटाइल है, जो वेपर बन सकती है, वो वेपर बन के उड़ जाएंगे और मेटल के साथ ऑक्साइड लग जाएगा। ये स्टेप नहीं करना पड़ेगा अगर पहले से ही किसी मेटल के साथ ऑक्साइड लगा हुआ, ठीक है ना, तो फिर हमें ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है ऑक्सीजन का उतारना, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन को किसी मेथड से उतार देंगे, जैसा मेटल होगा उसके ऊपर उसका कोई मेथड लगेगा ऑक्सीजन को उतारने का, तो हमें जो 99.9% प्योर जो मेटल है वो मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप हम रिफाइनिंग उसके ऊपर लगा करके 100% प्योर जो मेटल है वो गेन कर लेंगे। तो कन्वर्जन टू ऑक्साइड, तो पहले तो मैंने कहा कि मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना है। तो मेटल को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करने के लिए स्टेप 1 जो है दैट इज कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में क्या है, कैल्सिनेशन इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ ओर इन द एब्सेंस ऑफ एयर जस्ट बिलो इट्स फ्यूजन टेम्परेचर इन फर्नेस। किसी फर्नेस के अंदर मेटल को रख करके इन द एब्सेंस ऑफ एयर, मतलब क्लोज कर देना उस फर्नेस को, तो उसको हीट अप करना। और इतना हीट अप करना कि जस्ट उसका फ्यूजन ना हो जाए, मतलब कि वो आप वेपराइज ना हो जाए, ठीक है ना। तो इतना उसको हीट अप कर देना, गर्मी देनी, इतनी ज्यादा उसको हीट देनी है ताकि उसके साथ अगर कुछ वोलेटाइल इम्प्योरिटी है वो तो गैस बन के उड़ जाए, और जो मेटल है उसके साथ ऑक्सीजन जो है ना वो बाइंड अप हो जाए। इस मेथड को बोल रहे हैं हम कैल्सिनेशन। तो जैसे कि Fe2O3 और इसके साथ कुछ मॉइस्चर है XH2O, तो हीट अप करेंगे तो Fe2O3 और मॉइस्चर जो है वेपर बन के उड़ जाएगा। मॉइस्चर की जगह कोई और इम्प्योरिटी भी हो सकती थी जो कि ज्यादा गर्मी में वेपोराइज होके उड़ सकती है। आफ्टर हीटिंग द मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। और जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट को भी अगर हम हीटअप करेंगे तो वो जिंक का ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट के ऊपर हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। तो मतलब जो कैल्सिनेशन है वो प्रोसेस कार्बोनेट वाली ओर के ऊपर ज्यादातर कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बोनेट कंसंट्रेटेड ओर हमें मिल गई तो उसके ऊपर हम मेथड लगा रहे हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में जस्ट हीट करना है उसको, तो हीट करने के बाद हमें ऑक्साइड फॉर्म में जो मेटल है वो मिल जाएगा। तो जो हेमेटाइट है, हेमेटाइट के अंदर बहुत सारी कुछ इम्प्योरिटीज कैल्सिनेशन के दौरान उड़ जाएंगी। कुछ मॉइस्चर है वाटर के, उसके ऊपर भी हम कैल्सिनेशन मेथड ही लगाएंगे। मीन टू से किसी ओर के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ भी कैल्सिनेशन कर रहे हैं, और अगर कार्बोनेट मेटल के साथ जुड़ा है तो उसके साथ भी हम कैल्सिनेशन मेथड ही लगा रहे हैं। और कैल्सिनेशन के दौरान हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलेगा वो मेटल का ऑक्साइड होगा, और कुछ नहीं लगा होगा उसके साथ, ओनली मेटल का ऑक्साइड। और जस्ट ऑक्सीजन को रिमूव करना रह गया और उसको हम आसानी से रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट मेथड में हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ये सारे के सारे मेटल के ऑक्साइड बन गए। और दूसरा स्टेप है रोस्टिंग। अगर कार्बोनेट वाली ओर ना हो तो इन रोस्टिंग द ओर इज हीटेड इन अ रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इन ए रेजर्वेटरी फर्नेस एट ए टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो रेजर्वेटरी फर्नेस आपको पहले दिखा दी है। तो फर्नेस के अंदर ओर को रखा और उसको रोस्ट कर दिया। ये प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब कि एयर के मौजूदगी में मेटल को जो है हीट अप कर देना, रोस्ट कर देना, बहुत ज्यादा गर्मी में रोस्ट कर दिया, लेकिन इतना गर्म नहीं करना कि वो मेल्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर एयर में रोस्ट करना है, एयर में हीट अप करना, उसको बोल रहे हैं रोस्टिंग। सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व
आर सल्फाइड और। जैसे कि ये जो रोस्टिंग मेथड है ये सल्फर की जो इम्प्योरिटी है उसके ऊपर ही लगेगा। जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को एयर की प्रेजेंस में रोस्ट करेंगे तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। पहले कैल्सिनेशन में भी हमने ऑक्साइड बनाया, अभी रोस्टिंग में भी ऑक्साइड बना रही है, लेकिन रोस्टिंग में सल्फर वाली इम्प्योरिटी है और जो कैल्सिनेशन थी उसमें कार्बोनेट वाली इम्प्योरिटी थी, ठीक है ना। तो लेड सल्फाइड है, इसके ऊपर रोस्टिंग किया, लेड ऑक्साइड बन गया। तो कॉपर सल्फाइड है, कॉपर सल्फाइड को भी रोस्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया। द SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमें रोस्टिंग के दौरान जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल रही है इसको वेस्ट नहीं करना, एयर में नहीं छोड़ते इसको, इसको जो है किसी तरह से इसकी जो है फिलिंग कर लेंगे किसी सिलेंडर के अंदर, तो ये कंपनी को दे देंगे किसी ऐसी कंपनी को जो कि इससे बाद में सल्फ्यूरिक एसिड बना सकेगी, ठीक है ना। इसको सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए यूज किया जाएगा। सल्फाइड ओर्स ऑफ कॉपर आर हीटेड इन रेजर्वेटरी फर्नेस। जो सबसे पहले आपको मैंने फर्नेस दिखाया ब्लास्ट फर्नेस से पहले, तो उसके अंदर हम जो रोस्टिंग वाली जो सल्फर वाली ओर है उसके ऊपर रोस्टिंग करते हैं। If the ore contains iron oxide, it is mixed with silica and roasted. इफ द ओर कंटेन आयरन ऑक्साइड, अगर आयरन का ऑक्साइड पहले से है तो उसके ऊपर हम सिलिका ऑक्साइड उसके साथ मिला करके उसको हीट अप करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो हमें स्लैग मिल जाएगा, FeSiO2। आयरन ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू आयरन सिलिकेट कॉल्ड स्लैग। तो मतलब स्लैग क्या है? स्लैग सिलिकेट, आयरन सिलिकेट को हम स्लैग बोल रहे हैं, आयरन सिलिकेट इज नोन एज स्लैग। और एक ये तो जस्ट डेफिनेशन है, स्लैग क्या है और कॉपर मैटे क्या है। कॉपर मैटे क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड आर नोन एज कॉपर मैटे। और ये स्लैग और कॉपर मैटे इसका यूज हम नेक्स्ट देखेंगे। स्मेल्टिंग, द प्रोसेस of separating molten metal in crude form or mixture of metal sulfide in molten form from ore is called smelting. Example for a mixture of copper iron pyrite, coke and sand on heating in blast furnace give matte. तो कॉपर आयरन पायराइट को अगर हम हीट अप करेंगे तो इससे हमें मिलेगा कॉपर मैटे, सॉरी कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड का मिक्सचर जिसको हम बोल रहे हैं कॉपर मैटे। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, अभी क्या है कि ऑक्सीजन लगी मेटल एटम के साथ और उस ऑक्सीजन को उतारना है, और उसको उतारने के लिए ऑक्सीजन का रिमूवल करना है, तो उस प्रोसेस को बोल रहे हैं रिडक्शन। रिडक्शन इज द reduction of metal oxide usually involve heating it with some other substance acting as a reducing agent। तो प्रिंसिपल इसका ये है कि जिस मेटल के साथ ऑक्सीजन बाइंड है तो उस ऑक्सीजन को उतारना है। प्रोसेस को तो कहेंगे हम रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीजन को उतारने के लिए कौन आएगा? कोई ऐसा सस्ता कोई एटम हमें मिल जाए जिसके ऊपर खर्चा ज्यादा ना हो लेकिन उसकी रिएक्टिविटी उस मेटल से ज्यादा हो। तो उस मेटल से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के कारण वो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने साथ रख लेगा और मेटल को फ्री कर देगा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं रिडक्शन। पहले तो हमने जो कार्बोनेट है या सल्फर वाली जो इम्प्योरिटी है मेटल के साथ लगी हुई उसको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के दौरान मेटल ऑक्साइड के अंदर चेंज कर दिया। तो एक बार मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, कार्बोनेट भी उतर गया और सल्फर भी उतर गया, जो मेटल के साथ ऑक्सीजन आ गया। अभी उस ऑक्सीजन को हम कार्बन या कोक या कोयला उसके साथ हम मिला करके हीट अप करेंगे, तो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन जो मेटल के साथ है उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी और
कार्बन डाइऑक्साइड बना करके वो उड़ जाएगी, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, एज ए प्योर मेटल। इसको बोल रहे हैं रिडक्शन। द रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे इस रिएक्शन में बताया कि मेटल के साथ ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ उसको हीट अप करना है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना देगी और जो मेटल है उसको फ्री कर देगी। To study the temperature dependence of thermal reduction and choice of a reducing agent at high temperature can be made from Gibbs energy and temperature curve called Allegrum diagram। तो ये एलिंग्रम डायग्राम क्या है, तो ये एक ऐसी डायग्राम है जिसके अंदर गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर का ग्राफ है। गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर के ग्राफ से हमें क्या फायदा होना है, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि कौन से मेटल ऑक्साइड के ऊपर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए, ठीक है ना। तो वो रिड्यूसिंग एजेंट जो कि मेटल से ऑक्सीजन को खींच ले, ठीक है ना, क्योंकि मेटल से ऑक्सीजन को वो ही रिड्यूसिंग एजेंट अपने साथ बाइंड कर पाएगा जिसकी रिएक्टिविटी उस मेटल से ज्यादा होगी, ठीक है ना। अगर कम रिएक्टिविटी वाला हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो वो ये काम नहीं कर पाएगा। ओके, तो हमें कैसे पता चलेगा भी किस मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, तो उसके लिए हमें गिब्स एनर्जी एंड टेम्परेचर कर्व देखना पड़ेगा, जो हमें जिसको बोल रहे हैं एलिग्राम डायग्राम। इसको आगे जाके हम देखेंगे। विच गैस इज लिबरेटेड ड्यूरिंग रोस्टिंग, तो एक क्वेश्चन है विच गैस लिबरेटेड ड्यूरिंग रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो है वो सल्फर वाली जो मेटल सल्फाइड के साथ की जाती है, तो मतलब उसके साथ जो रोस्टिंग के दौरान निकलेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट यूज्ड इन रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, कौन सा जी, कार्बन। ओके, थैंक यू बेटा।